In this video, we'll break down AWS Virtual Private Cloud in the simplest way possible. So let's get started. AWS VPC, right? VPC, you guys might have heard of. It's called Virtual Private Cloud, right? Just like in networking, how we studied home networking, right? We had a private network here and we had a lot of devices. So in AWS also, create a VPC, a virtual private cloud, a private network, right? Where we can provision all our resources. Right. So this VPC, the services that we'll be studying, and let's look at what is VPC, right? What is the definition, right? So it's VPC is nothing but it's a private network, a virtual private network that we can create in our account, right? And it will also accept the same properties like CIDR range. जैसे हमारा घर का होता था, right? घर के router पे there was a private range configured. इसमें भी we will configure a private CIDR range, right? We will create subnets, we will create route tables. Maybe in the home networking that we studied, we didn't go into much detail about setting up subnets in the local network or route tables or anything like that. But here we will see every bit of it, right? तो हम अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं क्लाउड पे एंड उसके अंदर देन हम रिसोर्सेज प्रोविजन करते हैं लाइक योर वर्चुअल मशीन्स डेटाबेसेस और एनी अदर रिसोर्सेज राइट लैम्डा फंक्शंस भी यू कैन डू there are other resources as well, like MSK is there, right? Uh, yeah. So a lot of other resources are there as well. तो हम सब प्राइवेट नेटवर्क के अंदर प्रोविजन करते हैं, राइट? सो इट इज बेसिकली हर VPC आइसोलेटेड होता है, राइट? सो यू कैन क्रिएट बाय डिफॉल्ट देयर इज अ लिमिट ऑफ 5. You can create 5 VPCs within your account, right? And you will have complete customization. You can do complete customization on it. You can decide how many subnets you want to create, right? And like what will be the core components. We'll take a look at that. Right. So let's get started, right? Benefits तो it's pretty much obvious, right? हम अपना private network बना रहे हैं खुद का. It will like we'll have enhanced security, right? We will create multiple subnets, public subnets, private subnets. We will use NACLs to enforce security, controlling inbound and outbound traffic, right? And private subnets में resources provision करके we will prevent them from being accessible over the internet, right? From within the private network only they will be accessible. It's okay if it isn't making much sense to you right now. Once we create the subnets, when we create the VPC, right, we will configure every one of these things, right? We will have a complete control like सारा IP address range, right? Subnets कितने बनाने हैं, routes क्या होंगे उनके, access control क्या होगा, सब हम देखेंगे, right? So don't have to worry about that. So let's get started by creating a custom VPC, right? We'll design that VPC here, right? We'll start with virtual private cloud, right? VPC. हम डिजाइन करते भी चलेंगे साथ में, ठीक है? तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड अब सबसे बनाने के लिए देखो हमने होम नेटवर्क पढ़ा था, राइट? उसमें ये मान लो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, राइट? तो ऐसे ही हम एक प्राइवेट नेटवर्क बनाएंगे AWS के अंदर जो कि VPC होता है और उसमें फर्स्ट थिंग यू हैव टू गिव इज द VPC नेम, राइट? एक नेटवर्क को क्या नाम दोगे आप, राइट? सो लेट अस फॉर आवर एग्जांपल लेट अस से वी गिव इट डेमो VPC और या डेमो VPC वी कैन गिव, राइट? ये हमारे VPC का नाम है. एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू गिव इज व्हाट विल बी द साइडर रेंज. अब you remember the private IP address ranges, right? 192.168.0.0 slash 16, I think it was, right? And 10.0.0.0 slash 8, ये private IP address ranges थी, correct? तो हमें यहाँ पे इसको एक साइडर रेंज भी देना पड़ेगा. साइडर जैसे हम हमारे इस केस में दे देते हैं 10.0 और 10.20.0.0 slash 16, राइट? ये हम VPC अब कंसोल के अंदर चल के बनाते हैं, राइट? लेट्स गो देयर. आई थिंक मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है. आई विल डिलीट दैट एंड विल क्रिएट इट बैक फ्रॉम स्क्रैच अगेन. अच्छा, आई थिंक वो डिलीट कर दिया था मैंने. इट्स फाइन, राइट? तो वी विल डू इट फ्रॉम द कंसोल, राइट? वी विल सी अ लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स. अभी हम यहाँ पे देखते जाना. अभी हमने सिर्फ एक VPC बनाया है, राइट? देयर इज नथिंग एल्स. इस VPC को नाम दिया है और एक साइडर रेंज दिया है. We'll go into VPC, we'll click on create VPC, right? Abhi I want to create VPC only, right? Take right. And what is the name you want to give, right? So demo VPC we saw.
इसके बाद हम जो साइडर ब्लॉक है, वी वांट टू वो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज ही देना पड़ेगा, राइट? बट वी वांट टू गिव दिस IPv4 manual input, the CIDR range, right? So for now we wanted to give 10.20.0.0/16, right? IPv6 we don't want to give it, right? Name demo VPC, that is fine, and create VPC, right? तो आपका VPC create हो गया है, this part is done, right? आपने आपके क्लाउड पे, if you go here your VPC, you see this demo VPC is created. आपका इसका VPC ID आया है, this is an available state. इसका CIDR range भी यहाँ पे आ गया है, right? And yeah, you have your private network created. तो आपने अब जैसे होम नेटवर्क पे व्हाट यूज्ड टू हैपन कि वी ओनली यूज्ड टू हैव अ सिंगल होम नेटवर्क, राइट? हमारे पास वी डिडंट हैव एनी सबनेट्स, और हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वी कैन मेक अ डिवाइस जॉइन द नेटवर्क, राइट? राउटर से हम वाईफाई कनेक्ट करके या लैन से, राइट, वी कैन मेक एनी डिवाइस जॉइन द नेटवर्क. बट इसमें इसमें हम डायरेक्टली रिसोर्सेज प्रोविजन नहीं कर सकते VPC के अंदर, राइट? इसमें यू हैव टू क्रिएट, आपने प्राइवेट नेटवर्क तो बना दिया, बट अब आपको सबनेट्स बनाने पड़ेंगे, राइट? यू हैव टू क्रिएट सबनेट्स. तो अब ठीक है, यहाँ पे एक चीज आई मिस्ड, राइट? वन थिंग आई मिस्ड कि जब हमने VPC क्रिएट करा, राइट, तो यहाँ पे एक चीज और क्रिएट हुई है. दैट इज योर, I'll show it here. That is your a route table. A route table is nothing, it's a table that has basically, entries, right? इसमें दो entries होती हैं, एक destination और एक target, right? Basically ये define करता है, ठीक है, this is the default route table that is created. We'll see what route tables are. Default route table, right? तो नेटवर्किंग में देखो, आपको कहीं भी नेटवर्क राउट करना है, राइट, तो यू नीड टू हैव अ राउट टेबल, राइट, जिसमें आपको पता हो कि अच्छा अगर ट्रैफिक को यहाँ जाना है, इसका डेस्टिनेशन यहाँ है, तो इसको यहाँ पे भेज दो, राइट? इसमें क्या होता है, देयर इज वन डिफॉल्ट एंट्री हियर दैट यू विल सी कि विद इन द VPC, राइट, आपने जो प्राइवेट नेटवर्क ये बनाया है, इसमें कनेक्टिविटी हमेशा रहती है. इट ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. अभी हमने इसमें कुछ बनाया नहीं है, बट हम जैसे अभी हमारे केस में हम क्या है, यहाँ पे 4 सबनेट्स बनाएंगे, 2 पब्लिक एंड 2 प्राइवेट, राइट? तो वो सारे ना आपस में कनेक्टेड रहेंगे. दैट कनेक्टिविटी इज ऑलवेज देयर, एक लोकल राउटर के थ्रू. अभी डोंट वरी, विल सी व्हेन वी क्रिएट द सबनेट्स, राइट, देन इट विल मेक मच मोर सेंस. इस डायग्राम को हम अपडेट करेंगे थोड़ा. तो हम इसमें एक एंट्री आती है 10.20.0.0/16. जिस भी ट्रैफिक की डेस्टिनेशन like the VPC itself, right? VPC के अंदर अगर कोई भी ट्रैफिक जाना है, तो it shouldn't go out. It should stay in local network only. This one entry would be there, right? और वो हम देख भी सकते हैं. Let's see if we are able to find that route table. यहाँ पे this route table got created. Is it okay? It didn't create a route table for us, right? Sometimes it happens. But let's see. Does it have a route table associated with it? Main route table. Okay, this behavior might have changed in the new what do you say, the new version of VPC, right? But ideally, I think if I create it again, VPC and more, I'm able to, okay, right. Might be the new version. It is not creating the default route tables, right? But जब हम Terraform से create करेंगे, right? Terraform जब बाद में हम पढ़ेंगे, it will be creating a route table, right? So we can create a default route table here, default RT, right? And we'll attach it to our the demo VPC we created, right? And create route table. So इसमें see there's already this like this entry is there कि कोई भी ट्रैफिक अगर उसका डेस्टिनेशन विद इन द VPC है, तो इट विल go to basically local. It should stay in the local network only. It shouldn't go out, right? तो अब उसको does it follow that? Yeah, main route table you see, right? इसका main route table यहाँ पे आ गया है, जो हमने बनाया था अभी routes. Yeah, this is there. Okay, fine. I think it took some time, right? ये मैंने खुद ने बनाया था default route table, जिसको मैं delete कर देता हूँ, right? I think it took some time to create this default route table here. Now, if you see, नहीं ये वाला नहीं, first वाला है, right? हाँ, इसमें एक ही entry है, right? कि अगर कोई भी traffic is supposed to be
उसका डेस्टिनेशन विद इन वीपीसी है, राइट, मे बी एक EC2 इंस्टेंस इस वीपीसी में जिसको दूसरे EC2 इंस्टेंस से बात करनी है, तो दैट ट्रैफिक विल स्टे हियर ओनली इन द लोकल नेट, इट विल नॉट गो आउट, राइट। तो ये आपका डिफॉल्ट राउट टेबल बन गया, राइट। यू कैन गो हियर एंड सी वेल, आप वीपीसी पे जाओ, क्लिक ऑन योर वीपीसी एंड यू सी द मेन राउट टेबल, राइट, दैट इज द डिफॉल्ट राउट टेबल। अब हमें क्या करना है, one thing, right? I'll keep writing my requirements here as well. We want to create two public subnets, two private subnets, right? And ये this also in different AZs, right? Subnets का scope AZ level पे होता है. You have to select a AZ as well while creating subnets, different AZs, right? दो private subnet. अब वो हम देखेंगे कि ये public private कैसे होंगे, that is a different thing. But now ठीक है, ये साइडर रेंज है एंड यू गाइज ऑलरेडी हैव लर्नड इन नेटवर्किंग, राइट, इसका सबनेट्स कैसे बनाते हैं। कोई मेरे को इसमें /24 के 4 सबनेट्स दे सकता है? एनीवन कैन टाइप इन द चैट और लेट मी नो व्हाट कैन बी द टू पब्लिक सबनेट्स, व्हाट कैन बी द टू प्राइवेट सबनेट्स हियर, एनीवन? ये आपका साइडर रेंज है एंड यू हैव टू क्रिएट 4 सबनेट्स आउट ऑफ इट ऑफ /24. 1.0/24, 2.0/24, 3.0. This way one hour. Yes, we can do like public one, we can have 10.20.0.0/24, right? And other one 10.20.1.0/24. Similarly, for private subnets, we can have the next two, sorry, 10.20.2.0/24 and 10.20.3.0/24, right? I hope you guys know how this subnetting is done, right? Networking में हमने पढ़ा था. Just if you're still a little confused of how to do this, just go back to the networking lecture and you can see the subnetting part, right? ठीक है, तो हमने सबनेट्स बना दिए, तो अब इसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? Let us first go create it there, then we'll update this diagram. We'll go to subnets. Subnets हैं जो डिफॉल्ट VPC जो हम बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, we'll ignore that. We'll create our own subnets, right? सबसे पहले VPC सेलेक्ट करेंगे, हमारा डेमो VPC, राइट? अब सबनेट का नाम देंगे, मे बी दिस इज पब्लिक सबनेट 1A. 1A मैंने क्यों दिया है, राइट? बिकॉज मैं इसको अवेलेबिलिटी जोन, यू नो, राइट, रीजन हमारा AP साउथ 1 है, राइट, और अवेलेबिलिटी जोन उसमें 3 है, 1A, 1B एंड 1C. तो अभी हम दो पब्लिक सबनेट्स बना रहे हैं, राइट? 1A में बनाएंगे पहला और दूसरा 1B में बनाएंगे. तो यहाँ पे सी हमने इसको नाम तो 1A दे दिया है, बट हमें अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो आई विल सेलेक्ट 1A, राइट, AP साउथ 1A, फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन. इसका साइडर ब्लॉक क्या होगा? सो आई वांट टू, ये तो VPC साइडर ब्लॉक है, सबनेट का साइडर ब्लॉक क्या होगा, राइट? सबनेट ऑब्वियसली छोटा ही होता है VPC के साइडर ब्लॉक से, तो इसका पहला हमने रखा था 10.20.0.0/24. दिस इज फाइन, राइट? दिस वी विल क्रिएट पब्लिक सबनेट 1A, क्रिएट सबनेट. ये क्रिएट हो गया पहला सबनेट आपका. दूसरा सबनेट वी विल क्रिएट, राइट, सेम थिंग, VPC सेलेक्ट करा एंड पब्लिक सबनेट 1B, इसको 1B में प्रोविजन करेंगे. ये स्विच कर लिया. इसमें फिर हमने 0.0 की जगह इसको सबनेट का अलग साइडर जाएगा, राइट? हमने ये दे दिया, विल क्रिएट इट. दो पब्लिक हमने क्रिएट कर लिए. नाउ वी विल क्रिएट टू प्राइवेट एज वेल. तो वो भी कर लेते हैं. सिमिलर थिंग, प्राइवेट सबनेट 1A, राइट, इसको मैं 1A में प्रोविजन करूंगा. इसका ये होगा 2.0/24, right? And fourth one I'll also create demo VPC, right? Private subnet 1B, availability zone again availability 1B, right? And इसका हमने क्या रखा था 3.0, right? ये आपके सबनेट बन गए, right? ये देखो 4 सबनेट जो हमने बनाए, 2 पब्लिक 2 प्राइवेट. अभी these are just normal subnets for us, ना ये पब्लिक है ना प्राइवेट है. These are just basic subnets. इनका साइडर रेंज you are also able to see here. इन्हें कौन से नेटवर्क का पार्ट है that also you're able to see here, right? इसको हम यहाँ पे बनाते हैं. हमने क्या करा, बेसिकली ये हमने सबनेट बनाया, ठीक है. इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, राइट? तो अब ये पहला वाला है,
ये है आपका पब्लिक सबनेट 1A, ठीक है। सिमिलरली आपका ये है पब्लिक सबनेट 1B, राइट। ये आपका प्राइवेट सबनेट 1A एंड ये है प्राइवेट सबनेट 1B, राइट। इनका हमने वो भी दिया है, राइट, व्हाट डू यू कॉल इट, सबनेट साइडेड ब्लॉक 10.20.0.0/24, राइट। इसको I'll कॉपी। 1B का हमारा है .1.0, इसका हमारा है .2.0 एंड ये है हमारा 3.0, राइट। ये हमने बना दिया। अभी सब इनका बस नाम पब्लिक एंड प्राइवेट है, बट अभी देयर इज नथिंग लाइक पब्लिक प्राइवेट अबाउट देम, दे जस्ट रेगुलर सबनेट्स। बट अभी यू सी, अब इन ये सबनेट्स हमें बनाए, राइट। सबनेट बनाए हैं तो इन सबनेट की भी राउट टेबल्स होनी चाहिए, बट हमने कोई राउट टेबल्स तो बनाई नहीं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आई जस्ट कीप राइटिंग दिस पॉइंट्स एज वेल, राइट। When we create a subnet, right, if they don't have a route table associated with them, if they don't have a explicit, अगर हमने explicitly कोई route table उनके साथ associate नहीं करी है, then they will follow the default route table, right। अभी हम route tables ही बनाएंगे इनके लिए, right, but अभी since हमने कोई route tables नहीं बनाई है, so all of these subnets are following this default route table जो VPC का है, ठीक है, default route table of VPC। अभी we'll see how these route table will come into play। हम route tables के अंदर भी एंट्री ऐड करेंगे, राइट, फॉर इंटरनेट एक्सेस। राउट टेबल के अंदर ही मॉडिफिकेशंस करेंगे such that these become public and these become private, राइट। तो अभी they are following these default route table, but we want to change that। हम एक काम करेंगे, हम पब्लिक के लिए एक राउट टेबल बनाएंगे एंड प्राइवेट के लिए एक राउट टेबल बनाएंगे। One route table can be associated with multiple subnets, right? So we will create ये हमने बना लिया, राइट। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, वन पब्लिक राउट टेबल associated with both the public subnets, and similar thing we'll do one private route table associated with both the private subnets। Let us go do that। यहाँ पे आपको अगला राउट टेबल दिखेगा, we'll go to the route table। अगेन यू सी, यहाँ पे हमने जो डिफॉल्ट राउट टेबल बनी थी, राइट, अभी वही प्रेजेंट है, जिसके अंदर एक डिफॉल्ट राउट है कि अगर डेस्टिनेशन हमारा VPC है तो कीप द टारगेट इज इन लोकल नेटवर्क ओनली, राइट, डोंट सेंड इट आउट एनीवेयर। विल डू दैट, विल क्रिएट अ राउट टेबल, ठीक है, एंड इसको हम देते हैं जैसे पब्लिक राउट टेबल, पब्लिक RT, राइट। विल सेलेक्ट आवर VPC एंड विल क्रिएट दिस। Similarly, we'll create a private route table as well, right? Private RT, we'll select a VPC, we'll create it। अब ये डिफॉल्ट राउट देखो हर राउट टेबल में रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीट दिस। आप इसको डिलीट कर ही नहीं सकते, राइट, देयर इज नो ऑप्शन टू डिलीट इट, क्योंकि ये ऐसी एंट्री है कि आपकी VPC ट्रैफिक के लिए ही है। मैंने आपको बताया था, राइट, कि दिस VPC ट्रैफिक के अंदर कनेक्टिविटी हमेशा रहती है, तो दिस इज दैट ओनली। यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली देयर इज अ राउटर हियर इन बिटवीन, ठीक है, ये राउटर यहाँ पे रहता है। आई कैन मेक दिस मीडियम सो इट फिट्स इट। Yeah, there is this router in between, and all of these subnets are connected to this। ये सबनेट इससे कनेक्टेड है, ये सबनेट भी इससे कनेक्टेड है, ये सबनेट भी इससे कनेक्टेड है, एंड ये सबनेट भी इससे कनेक्टेड है। तो मैंने बताया ना कि आप जो जितने भी सबनेट्स हैं VPC के अंदर, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। आप यहाँ पे 10 सबनेट्स और बनाओगे, वो 10 के 10 सबनेट्स आपस में कनेक्टेड होंगे बिकॉज ऑफ दिस राउटर। दैट इज व्हाई अगर मान लो कोई, कैन एनीवन टेल मी एनी IP फ्रॉम दिस सबनेट, एनीवन, पब्लिक सबनेट वाले में से। मान लो आपने यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 for this।
राइट राइट राइट, हमने यहाँ पे आपने EC2 बनाया, EC2 बनाया, ठीक है, उसका IP आया मान लो 10.20.0.5 आ गया, 4 आ गया, और लेट्स से 6, राइट। और सिमिलरली आपने यहाँ पे एक EC2 बनाया, राइट, जिसका IP यहाँ पे आ गया 10.3.5 और 8 में। अगर इस EC2 को कुछ भेजना है, ठीक है, तो अब ये देखो है तो सेम नेटवर्क में, राइट। आपका डेस्टिनेशन क्या होगा, ये होगा। तो इस सबनेट को मान लो इसको भेजना है, राइट, ट्रैफिक। तो अब हम क्या करेंगे, सबनेट को कैसे पता इस ट्रैफिक को कहाँ राउट करना है, राइट। सबनेट को कैसे पता कि भाई जो ट्रैफिक है ये VPC के अंदर का है, या इसको कहीं और भेजना है इंटरनेट पे, राइट, या कहीं और भेजना है, कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हम हमेशा सबनेट की राउट टेबल देखेंगे। तो अभी वैसे अगर कुछ फॉलो नहीं होता, अभी मान लो हमने राउट टेबल्स नहीं बनाई, कस्टम राउट टेबल्स, राइट। तो मैंने बताया था कि राइट, अगर इफ देयर इज नो राउट टेबल एसोसिएटेड विद द सबनेट, देन इट फॉलोज द डिफॉल्ट राउट टेबल, राइट। तो अभी यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन क्या है, 10.20.3.8। हम ये फर्स्ट EC2 से, राइट, फर्स्ट EC2 से वी आर सेंडिंग ट्रैफिक टू दिस सेकंड EC2, राइट, दिस सेकंड EC2 वी आर सेंडिंग द ट्रैफिक टू। तो अब इस सबनेट में जब हम डेस्टिनेशन हमारा 10.20.3.8 है, तो हम राउट टेबल देखेंगे इस सबनेट की कि ट्रैफिक कहाँ जाएगा। तो जब मैं डिफॉल्ट राउट टेबल को देखूंगा तो इसको पता है कि अगर कोई भी ट्रैफिक 10.20.0.0/16 के अंदर आ रहा है, तो ये IP ऑब्वियसली उस साइडर रेंज के अंदर ही कॉल करता है, राइट। ये VPC की साइडर नेटवर्क रेंज के अंदर ही है, राइट। तो ट्रैफिक लोकल राउटर पे भेज दो, तो ये क्या करेगा, ये ट्रैफिक, इसको पता है कि अच्छा ये तो ट्रैफिक मेरे VPC के अंदर का ही है, राइट, एंड आई नो कि अगर इस ट्रैफिक की डेस्टिनेशन ये लोकल राउटर है, तो वो इस पे भेज देगा। राउटर ऑटोमेटिकली सबनेट को फॉरवर्ड कर देगा, बिकॉज आई टोल्ड यू एवरी सबनेट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। और आपने यहाँ पे कस्टम राउट टेबल्स भी अगर इनकी बना ली, राइट, if we take this, if we copy this, right, if we copy this and we paste it here, ठीक है, हमने यहाँ पे प्राइवेट राउट टेबल बनाएंगे, प्राइवेट राउट टेबल, ठीक है, एंड वी विल एसोसिएट इट विद बोथ ऑफ दीज, लाइक इस प्राइवेट से भी एसोसिएटेड होगा, ठीक है, एंड इस प्राइवेट से भी एसोसिएटेड होगा। अभी एसोसिएट करेंगे हम, अभी हमने राउट टेबल बनाई है, बट सिमिलरली विल क्रिएट अ राउट टेबल फॉर पब्लिक सबनेट्स एज वेल, राइट, पब्लिक सबनेट्स। और let us associate uh, this subnet to this and this public subnet to this, right. तो हमने राउट टेबल्स तो बना ली, इन द राउट टेबल्स यू कैन सी आई हैव अ पब्लिक राउट टेबल एंड अ प्राइवेट राउट टेबल, दोनों की एंट्री सेम है, अभी हमने कुछ ऐड नहीं करा। दिस इज डिफॉल्ट एंट्री दैट विल ऑलवेज बी देयर इन ऑल द राउट टेबल्स दैट यू विल क्रिएट फॉर दिस VPC। पब्लिक में भी सेम एंट्री है, प्राइवेट में भी सेम एंट्री है, राइट, दिस इज फॉर लोकल ट्रैफिक। तो हम एसोसिएट कर देते हैं इसको, राइट। अभी हम क्या करते हैं, इन सबनेट्स को आप देखोगे, राइट, अभी हमने कुछ एसोसिएट नहीं करा एक्सप्लिसिट इनके साथ। So, if you see their route table, right, what is the route table they're following? They're following, इसी यहाँ पे 4 to F आपको दिखेगा, right? This is a route table. This is a default route table that got created with the VPC. ये अभी इसको follow कर रहे हैं, because since they don't have a explicit route table association. तो हम क्या करेंगे, ये public subnet को लेंगे, right? And we will associate it cider reservations. Let's go to this subnet. राउट टेबल, एडिट राउट टेबल एसोसिएशन हम चेंज कर देंगे, और इसको हम एसोसिएट करवाएंगे पब्लिक राउट टेबल से, राइट। आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यू कैन गो टू द राउट टेबल, राइट, पब्लिक राउट टेबल एंड सबनेट एसोसिएशंस। यहाँ पे देखोगे कि ये एक एक सबनेट है, यहाँ पे 3 सबनेट्स हैं जो अभी किसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो वो डिफॉल्ट राउट टेबल को फॉलो कर रहे हैं, राइट। हमने एक सबनेट के साथ एसोसिएट कर दिया, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम इस राउट टेबल को पब्लिक सबनेट 1A और 1B के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। तो नाउ ये पब्लिक राउट टेबल, ये वाला जो हमने कनेक्शन बनाया है, राइट, ये दोनों सबनेट इस राउट टेबल को फॉलो कर रहे हैं अभी। सिमिलरली हम प्राइवेट राउट टेबल को भी कराएंगे, राइट। प्राइवेट राउट टेबल जाके विल एडिट सबनेट एसोसिएशंस, तो विल सी देयर आर 2 प्राइवेट सबनेट्स, राइट, जो कि अभी डिफॉल्ट राउट टेबल को फॉलो कर रहे हैं। दे डोंट हैव अ एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन, राउट टेबल एसोसिएशन। तो हम इन दोनों सबनेट को सेलेक्ट करेंगे और ये प्राइवेट राउट टेबल से कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ये वाला भी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया, राइट।
अभी भी आप फर्स्ट EC2 से सेकंड EC2 पे ट्रैफिक भेजोगे तो इसी द राउट टेबल, जब ये फर्स्ट EC2 इसको भेजेगा ट्रैफिक, राइट, इस IP को, तो अपनी राउट टेबल चेक करेगा सबनेट की, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा है तो लोकल ट्रैफिक ही है, इट विल सेंड इट टू द राउटर एंड द राउटर विल फॉरवर्ड इट, राइट। एंड अगर वाइस वर्सा, अगर इसको सेकंड EC2 को फर्स्ट EC2 को ट्रैफिक भेजना है, तो इट विल, द डेस्टिनेशन विल बी दिस IP एड्रेस, इट विल चेक इट्स राउट टेबल, एंड उस राउट टेबल भी यू विल बी एबल टू सी कि अच्छा ये तो लोकल ट्रैफिक ही, आई सेंड इट टू द लोकल राउटर। ये लोकल राउटर AWS मैनेज करता है, वी कांट सी इट एंड इट्स जस्ट लाइक बिहाइंड द सीन्स इट इज वर्किंग, राइट। राइट, यहाँ तक किसी को किसी चीज में डाउट, व्हाट वी डिड टिल हियर? अभी वी विल स्टार्ट सीइंग कि हाउ डू वी क्रिएट पब्लिक सबनेट्स, राइट। इसको, ये पब्लिक सबनेट हमने इसको नाम तो दे दिया, बट इसको एक्चुअल में पब्लिक बनाए कैसे, राइट। अभी दिस इज जस्ट अ सबनेट, देयर इज नो इंटरनेट कनेक्टिविटी इन दिस VPC, राइट। देयर इज नो, मतलब आप इंटरनेट आप एक्सेस कर ही नहीं सकते अभी, ना ये पब्लिक है ना प्राइवेट है ना कुछ है, राइट। सो हाउ हाउ डू यू मेक दैट? इसमें इसमें अभी तक किसी को कुछ डाउट है, एनीवन?